Bismillahirrahmanirrahim, everyone. Uh, Thank you for being here. This is Dr. Hassan Khan, CEO and founder of Healthcare Hustlers. And today we have very special guest, uh, Mr. Azhar Abbasi. And he is actually a pro in his work and in the industry. And the reason for inviting him and taking his time was very simple, that we wanted to answer the question many people were having. Because he is an industry expert of the situation and the field, he is better of in the position to answer many of your queries. So we will be using the mode of language Urdu, so many of people here can understand. Many audiences from more of the audiences from Pakistan. So let me know, guys, if you can hear my voice properly, so we can start it now. Give me a thumb up. Okay, let's go. Okay, so our guest is a bit of introduction about him. He is Azhar Abbasi. Thanks, Dr. Mr. Azhar, for being here, for giving us your time. And he is Director of Operations in US Healthcare RC, expert in one of the US healthcare hospital, having more than a decade of experience, and have managed more than 150 clients. And he is in the industry for far the way I know. So without further ado, uh, Mr. Azhar Iqbal, please can you turn on your mic and let's start what our audience has been waiting for. Azhar bhai, can you hear me? Okay, let me unmute you. Okay, let me unmute you. Okay. Can you try it now? Yes. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? Yes, I can hear you, and you are audible here very properly. Bismillah. All right. Thank you for joining all. My name is Azhar Abbasi, and I have been working in the US healthcare industry for over a decade, as Dr. Hassan already mentioned. And thank you for my introduction, Dr. Hassan. And today, I will share not just a theory, but the real words, insight, practical experience, and the career guidance for everyone who wants to grow in this field. तो आज हम इस कम्युनिटी सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो लोग अपना मेडिकल बिलिंग का कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री के जो है रियलिटी चेक क्या हैं और क्या इसमें मतलब आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आप इंडस्ट्री में कैसे अपना जो है ना वो अर्निंग लर्निंग और सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन सेशंस हैं, मेरे ख्याल से पहले हम उनको अगर एड्रेस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी एड्रेस हो जाएंगे, और अगर कोई रिमेनिंग रहेगा तो सेशन के एंड में हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। Okay, thank you very much, Mr. Azhar. And yes, it is going to be like that. This is a basic framework of how this 60-minute session is going to be. And we are going to start now. Let me move to the industry. What is actually RCM? What is actually billing? How does it work? ये होता क्या है, अजहर भाई? ठीक है। RCM स्टैंड फॉर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, और RCM मेडिकल बिलिंग की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो मेडिकल बिलिंग द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग एंड following up on medical claims to health insurance companies and the patients to get the payment for the services rendered by the provider. तो इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। लाइक जो मेडिकल बिलिंग की डेफिनेशन है कि सबमिटिंग एंड फॉलोइंग अप ऑन क्लेम्स क्या होता है कि एक बिल होता है जो और पेशेंट और प्रोवाइडर यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर को कहते हैं। डॉक्टर बेसिकली प्रोवाइडर होता है,
और यूएस में डॉक्टर्स को प्रोवाइडर ही कहा जाता है। तो मेडिकल बिलिंग में ये होता है कि मेडिकल बिलिंग में जब आप एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसकी एक कोडिंग सिस्टम है, कोडिंग होती है, तो वो फिर एक बिल बनता है जिसको हम क्लेम कहते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की तरफ आप आए तो सबमिटिंग एंड फॉलोइंग अपन क्लेम, यानी कि क्लेम आपने वो बिल भेजा किसको, इंश्योरेंस को, और उसकी सर्विसेज की पेमेंट्स डॉक्टर को कलेक्ट करके दी। तो ये बेसिकली मेडिकल बिलिंग की शार्ट सी डेफिनेशन है कि हमने डॉक्टर ने जो पेशेंट को सर्विसेज दी उसका बिल बना के इंश्योरेंस को भेजा और इंश्योरेंस ने पेमेंट की डॉक्टर को उन सर्विसेज की। ठीक है, तो इसमें पूरी एक समझ ले किस्म की इंडस्ट्री है और सारा कुछ इसी के अंदर है मेडिकल बिलिंग की डेफिनेशन में, और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये सारा जो पेशेंट का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना विद डॉक्टर और उसके बाद पेमेंट कलेक्ट करके इंश्योरेंस से पेमेंट कलेक्ट करके डॉक्टर को देना, ये पूरा साइकिल जो है ये रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट डेस्क में जो पेशेंट को एनरोल करते हैं वहां से लेकर डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, जिसमें स्क्राइबिंग भी आ जाती है, वो स्क्राइब करता है, स्क्राइबर नोट, फिर स्क्राइबिंग के वो आगे कोडर कोडिंग में कन्वर्ट करता है, वो फिर बिलिंग टीम उस कोडिंग की बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी से आपका जो है वो क्लेम करती है कि हमारा बिल ये था। इस पूरे साइकिल को हम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं। इज इट राइट? जी, रेवेन्यू साइकिल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर के साथ और यहीं से ना रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट जैसे ही स्केड्यूल हुई डॉक्टर के पास, तो हमारे पास डॉक्टर्स के लॉगिन्स होते हैं, वहां पे पता चल जाता है कि ये पेशेंट आ रहा है। ठीक है, तो वहां से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही अपॉइंटमेंट लगी तो बीइंग अ मेडिकल बिलिंग कंपनी या बीइंग अ मेडिकल बिलर उसका काम स्टार्ट हो जाता है। उसने क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है उसने वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स को शॉर्ट टर्म में वीओबी कहते हैं। आप लोगों ने जो अगर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप लोगों ने देखा होगा जॉब जॉब पोस्ट आती होंगी वीओबी स्पेशलिस्ट, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हायर कर रही होती हैं। तो उनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो वैलिडेट करती हैं कि उस पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव है, उसके क्या बेनिफिट हैं, वो डिटेल्ड में उस पर पूरा एक सेशन भी अगर हम डिस्कस करें तो वो भी कम है। तो बहरहाल शार्ट ये है कि उसकी इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन करते हैं कि आया जो डॉक्टर जिस पेशेंट को देख रहा है उसकी इंश्योरेंस एक्टिव है भी या नहीं, उसकी वो सर्विसेज इंश्योरेंस कवर करेगी या नहीं। तो ये सारा चीज़ें पहला स्टेप आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स। उसके बाद फिर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सर्विसेज दी, फिर वही जैसे आपने बताया स्क्राइबिंग हुई, कोडिंग हुई, यहाँ से अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स निकल रही हैं। ठीक है, स्क्राइबिंग की तरफ कोई जाना चाहता है, कोई वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स की तरफ जाना चाहता है, कोई कोडिंग की तरफ जाना चाहता है जिसका कोडिंग का जो है वो है। तो ये सारी एक समझ लें किस्म की एक फील्ड्स और वो निकल रही हैं। फिर वहाँ से उसके बाद डॉक्टर ने सर्विसेज दी, फिर आपने सब क्लेम बनाया, क्लेम मेडिकल बिलर बहुत सारे, अब आजकल एआई का टाइम है तो कुछ जो है वो मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो क्लेम खुद क्रिएट करते हैं, ऑटोमेशन है। कुछ अभी भी ओल्ड उसमें प्रोसेस में चल रहे हैं डॉक्टर्स, तो उसकी ना मैनुअल एंट्री होती है। तो एक कोडिंग जो सिस्टम है एक न्यूमेरिक सिस्टम है, हर डिजीज का यूएस में एक न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, वो डॉक्टर मार्क कर देते हैं, फिर उनकी बिलिंग करनी पड़ती है। लाइक चार्ज एंट्री, उसको चार्ज एंट्री कहते हैं मेडिकल बिलिंग में। तो चार्ज एंट्री के बाद उसकी सबमिशन होती है इंश्योरेंस को सबमिट। तो ये सारी स्किल सेट है कि आपने किस तरह सबमिशन करनी है, कैसे क्लेम क्रिएट करने हैं, कैसे आपने वीओबी करनी है, वो सारा कुछ क्लेम सबमिट होने के बाद इंश्योरेंस के पास जाएगा। इंश्योरेंस फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करेगी, पे या तो वो पेमेंट करेगी या वो डिनाई करेगी। तो वो आगे मजीद फर्दर चीज़ें हैं वो आके जाके कवर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो ठीक हो गया। तो समराइज ये है कि तो पेशेंट की अपॉइंटमेंट से लेके उसने जो सर्विसेज ली डॉक्टर से, उन सर्विसेज की पेमेंट इंश्योरेंस से लेके डॉक्टर तक के पहुंचाना, ये रेवेन्यू साइकिल है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा ब्रीफली और समझ लें कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया, बहुत सारी बातों को आपने बता दिया। और यहाँ से मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप बेशक ड्रॉप इन कर सकते हैं, हम आखिर में उनको एड्रेस करेंगे। प्लस अगर बीच में आपको कहीं वॉइस डिस्टॉर्शन होती है तो आप उसमें भी बता सकते हैं, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। जो अजहर भाई ने बात की उसमें मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जितने भी पोजीशंस उन्होंने बताई हैं, फ्रंट डेस्क, वीओबी, कोडर, बिलर, स्क्राइब,
ये सब ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और अब ये क्या होती हैं, कैसे करना है, हम आगे इस पे जाके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अदर भाई, व्हाट आर द की स्टेप्स इन द एंड टू एंड मेडिकल बिलिंग फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन ऑल द वे टू द फाइनल पेमेंट? तो ब्रीफली बताइएगा कि सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कि ये समझ लें, मेडिकल बिलिंग यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ना इसको कहते हैं मेडिकल बिलिंग साइकिल। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने थोड़ा सा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेगा, ठीक है, वो अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेगा, तो वहाँ से हमारा मेडिकल बिलिंग का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पेशेंट की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हुई डॉक्टर के साथ। जैसे ही अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हुई तो मेडिकल बिलर, मेडिकल बिलिंग कंपनीज का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट की अपॉइंटमेंट लगी, तो अपॉइंटमेंट लगने के बाद हमारा काम क्या होता है कि हम पेशेंट के आने से पहले, लाइक अगर अपॉइंटमेंट 2 दिन पहले किया है, 2 दिन बाद किया है या 3 दिन बाद किया है, तो हम उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये करें कि हम उसकी ये वेरिफिकेशन करें, क्योंकि पेशेंट का डेटा तो हमारे पास EHR डॉक्टर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं EHR EMR उनमें होता है। तो हम सबसे पहले उसकी ना वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट करें। वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट क्या कहलाती है कि हम उसकी इंश्योरेंस चेक करें कि आया इस पेशेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस है और वो इस दिन आएगा तो वो इंश्योरेंस उसकी सर्विसेज को कवर करेगी या नहीं। ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिव इनएक्टिव। मतलब हम पे डॉक्टर को पहले ही बता रहे होते हैं कि ये पेशेंट आ रहा है, इसकी इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं। अगर तो एक्टिव है तो फिर तो ये पूरा साइकिल आगे चलेगा, नहीं एक्टिव तो फिर हम पेशेंट को, क्योंकि उसमें अगर हम वैसे ही डॉक्टर सर्विसेज परफॉर्म करके बिल इंश्योरेंस को भेजेगा और अगर उसकी इंश्योरेंस ही एक्टिव नहीं हुई तो एक किस्म का समझ लें हम अपनी टर्म में कह सकते हैं कि वो एक डॉक्टर को लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्विसेज यूएस में पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से लेना बहुत आसान है और पेशेंट से निकलवाना पेमेंट बड़ा टफ होता है। तो इस वजह से हमें मेक श्योर करना होता है कि उसकी इंश्योरेंस एक्टिव है। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्टिव होगी तो फिर हम साइकिल स्टार्ट होगा। अगर नहीं एक्टिव तो डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्टर फिर वो डॉक्टर का डिसीजन है कि वो डॉक्टर पेशेंट को सर्विसेज दे और उसको अपफ्रंट वहीं पे कैश पेमेंट ले ले या जो वट वो डिसाइड करे। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस और पेशेंट। कुछ जो जब पेशेंट इंश्योरेंस से प्लान ले रहा होता है तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्ड चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स होते हैं, इंश्योरेंसेज ऑफर करती हैं। तो उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक पेशेंट का पोर्शन होता है और एक इंश्योरेंस का। तो वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स में हम निकाल लेते हैं कि पेशेंट का पार्ट कितना है और इंश्योरेंस ने कितना पेमेंट करना है, यानी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनेगी उन सर्विसेज में और इंश्योरेंस की कितनी। तो वो फिर हम डॉक्टर्स को बता देते हैं। अब वो डॉक्टर का डिसीजन होता है, उनका हेडेक है कि वो पेशेंट से लें या ना लें उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स पे। अच्छा, जब जैसे ही पेशेंट आया पे डॉक्टर ने सर्विसेज दी, अब यहाँ पे ना स्क्राइबिंग और मेडिकल कोडिंग जंप इन हो जाती है। लाइक डॉक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड की, स्क्राइब हुआ, मेडिकल रिकॉर्ड बना, कोडर ने उन मेडिकल की जो जो भी उसको पेशेंट को डिजीज था उसकी अप्रोप्रिएट कोडिंग की, क्योंकि वो हर डिजीज का एक कोड है, डेडिकेटेड कोड है। ठीक है, कोडिंग सिस्टम है। तो वो कोडिंग हुई, कोडिंग बनने के बाद, कोडिंग होने के बाद एक उसको कहते हैं सुपर बिल। सुपर बिल बन गया। सुपर बिल में आपका अब क्या होगा, पेशेंट का डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या कहते हैं कि पेशेंट की सारी डिटेल, यानी पेशेंट का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसका सारा इंश्योरेंस का रिकॉर्ड और ये और वो। और सुपर बिल, सुपर बिल में क्या होगा कि डॉक्टर अपनी सर्विसेज जो जो उसने सर्विसेज दी, कोडिंग, वो सारा कुछ मार्क किया। तो ये 2 चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप चार्ज एंट्री कर सकते हो, जो कि थर्ड स्टेप है, थर्ड या फोर्थ स्टेप है। उसमें आपने क्लेम बनाना है, बिल बनाना है, बिल आपने सबमिट किया। उसके बाद जब आप बिल बन गया तो आपने उसको सबमिट करना है इंश्योरेंस को। ठीक है, सबमिशन में भी 2 तरीके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर। वो थोड़ा सा और मजीद डिटेल में चला जाएगा। हमने क्लेम सबमिट किया इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस ने फिर पेमेंट की या डिनाई किया। पेमेंट की तो हमने पेमेंट पोस्ट करके उसको क्लोज कर दिया केस को, डॉक्टर को पेमेंट मिल गई। और अगर डिनाई हो गया तो उसमें आगे आ जाती है एक फील्ड डिनाइल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से भी एक और फील्ड निकल आती है। तो फिर डिनाइल मैनेजमेंट में, यानी वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है और वो सबसे वैल्यू बेस्ड टास्क है कि आपका अगर डिनाइल मैनेजमेंट, यानी वो क्लेम जो आपके डॉक्टर इंश्योरेंस ने पे नहीं किए, वो आप किसी तरह उनसे पेमेंट डॉक्टर्स को रिकवर करवा के दे रहे हो। तो फिर वहां से पेमेंट आने के बाद, डिनाई आने के बाद, फिर आ जाती है पेशेंट बिलिंग। एक फील्ड आ जाती है कि पेशेंट का पार्ट क्या है। पेशेंट को बिल हमने भेजा, उससे पेमेंट निकलवाई और
फाइनल ये है कि जब तक के पेमेंट उन सर्विसेज की सब पार्टी से, इंश्योरेंस, पेशेंट से लेके डॉक्टर तक के नहीं पहुंची, तो ये पूरा एक मेडिकल बिलिंग का साइकिल है। तो इसमें परफेक्ट, परफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिलिंग के इटसेल्फ आगे भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिस तरह कोडिंग की आगे से बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यानी हम इनको स्पेशलाइजेशंस कह सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या एक शख्स जिसको बेसिक मेडिकल बिलिंग का नहीं पता कुछ भी, तो क्या वो डायरेक्टली डिनायल मैनेजमेंट में जंप कर सकता है, या उसको बेसिक बिलिंग में एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए ऑलरेडी? नहीं, बेसिक बिलिंग का एक्सपीरियंस उसको होगा तो डिनायल मैनेजमेंट उसको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। हाल दो के आजकल एआई टूल्स हैं, सारा कुछ वो हेल्प आउट ले सकता है, मगर वो उतना इफेक्टिव वे से काम नहीं करेगा जो एक फ्रॉम द स्टार्ट लाइक जिसकी बेसिक स्ट्रांग होंगी, जिसको पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वो जल्दी फिक्स कर लेगा। तो डिनायल मैनेजमेंट पे आने के लिए आपको स्टार्ट में ना बेसिक्स पे अपना स्ट्रांग ग्रिप होगी तो आप डिनायल मैनेजमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत सारे आजकल दिखा गया कि हर जगह पे बिलिंग की बात हो रही है, मेडिकल बिलिंग आजकल बूम में है। तो ये इंडस्ट्री आज है कितनी, और इसमें बेसिकली इस जो स्किल्स हैं, मेडिकल बिलिंग, डिनायल मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस और ये सब चीजें, इनकी डिमांड क्या है, और क्या ये अच्छा पे करते हैं आपको? जी जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो अगर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि 2014 में मैंने स्टार्ट किया था ये कैरियर, ठीक है, और आज 2026 में हूं, तो 12 ओवर अ डिकेड मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी एट राइट दिस मोमेंट। मतलब अगर एक फ्रेशर भी, एक बिल्कुल जिसको मेडिकल बिलिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो अगर स्टार्ट करता है तो बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो लाइक उनको जो बेसिक जॉब ऑफर कर रही हैं वो 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 एज अ फ्रेशर वो उनको ऑफर कर रही हैं। और वो फिर अगर कोई क्विक लर्नर है या कोई ऐसा कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर जिन्होंने अपना एम यही बनाया कि हमने लर्निंग करनी है, तो वो फिर इमीडिएटली विद इन अ ईयर उस पर जंप इन कर जाते हैं, 80,000, 90,000, 100K तक के वो पहुंच जाते हैं। मगर वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना फास्ट पेस अपने आप को लेके जा रहे हैं, मतलब किन किन स्टेप्स पे ना वो इमीडिएटली आगे मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट स्केजलिंग है, स्केजलिंग हो गई, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट है, ये फर्स्ट स्टेप है वीओबी। वो अगर इसको सीख के अगले उस स्टेप पे चले गए तो उसके स्किल सेट इंक्रीज हो गया, चार्ज एंट्री पे चले गए, सबमिशन पे चले गए, डिनायल मैनेजमेंट पे चले गए, तो वो उनका स्किल सेट इनहेंस होता रहता है और वो आगे उनकी पे स्केल बढ़ता रहता है। एवरेज जो हमने इंडस्ट्री अभी आजकल प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मेडिकल बिलिंग का एट दिस मोमेंट, तो वो लोग उनको हम, और उनकी ना 4 चीज़ें हैं, वो मैं एट दी एंड आप लोगों को बता भी दूंगा कि ये सिंपल फार्मूला है। अगर आपने मेडिकल बिलिंग में अर्निंग और अपना फ्यूचर सिक्योर करना, तो ये 4 चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। तो एवरेज हमारी ये है, आजकल हमारा कंसेप्ट ये बना हुआ है मेडिकल बिलिंग में, क्योंकि हम लोग आए दिन इंटरव्यूज, हायरिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो एवरेज ये है कि अगर 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो 80K to 100K अर्न कर रहा है, ठीक है, और अगर 2 ईयर है तो वो मोर देन 100K अर्न कर रहा है। मगर उसके ऊपर भी वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अब अगर किसी ने 2 साल लगाए हैं वो सिर्फ एक ही स्किल पे लगाए हैं वीओबी पे, और वो ये कहे कि मेरे 2 साल हो गए तो मैं 100K या 150K लूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है, मेडिकल बिलिंग का डेप्थ नॉलेज और ये सारी चीज़ें। 4 चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है वो कम्युनिकेशन है, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जो बेसिक है, जो इस इंडस्ट्री की समझ लें एक किस्म की रूट है, ठीक है, तो इसके लिए आपने अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन फ्लुएंसी ये बेहतर है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, दूसरी चीज़ है मेडिकल बिलिंग डेप्थ नॉलेज। सॉरी, डेप्थ नॉलेज मीन्स कि वो आप जितना जितना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आता जाएगा, या लाइक जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से अगर आप गुजर चुके हैं तो ये आपका डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। दूसरी चीज तो ये डेप्थ नॉलेज। तीसरी चीज आ जाती है लीडरशिप, ठीक है, लाइक अगर आप इस काबिल हो गए हैं कि आप मेडिकल बिलिंग का नॉलेज भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो अब आप लीड भी कर सकते हैं, ठीक है। लीड मीन्स कि आपके अंडर कोई टीम मेंबर्स हों, यहाँ पे भी बैठे हुए हों, यूएस के क्लाइंट्स के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो फिर उसकी ना पे स्केल की कोई लिमिट नहीं है।
जो मैंने 100 के या 120 के या 130 के की कही है, तो जब आप थर्ड स्टेप में आ जाते हैं तो फिर आपकी कोई लिमिट नहीं है, फिर वो आपकी अपना स्किल सेट है, वो आपका वो है कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये लीडरशिप, और लीडरशिप के बाद आपकी फाइनल जो चीज़ आ जाती है वो मतलब रिपोर्टिंग, एनालिटिकल स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो फिर आप टॉप मैनेजमेंट की फिर उसमें चले जाएंगे, लाइक मैनेजर, डायरेक्टर ऑपरेशन। और उसके बाद भी ये नहीं है कि आप मैनेजर, डायरेक्टर ऑपरेशन के बाद अगर आप यहाँ पे स्टाफ हो सकते हैं, आप सीईओ या एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना क्लाइंट खोल वो मिल जाते हैं, आप अपनी मेडिकल बिलिंग की इंडस्ट्री ओपन करते हैं, तो वो फिर आजकल वैसे है ये बहुत चीज़ है कि अगर मतलब किसी को यूएस का डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाते हैं तो वो मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री के सीईओज भी बन सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह जैसे हेल्थ केयर हसलर ने डिफरेंट जो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, सब ऑडियंस के लिए, कि आप लोग यहाँ से मतलब सर्टिफिकेशन करें, हर चीज़ की वो करें, तो इंशाल्लाह इसका आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिस्टर अजहर। मैं इस पे एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने 100 के स्केल पे स्केल की बात की है और 80 के पे स्केल की बात की है, वो बेसिकली इट्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन स्किल्स एज वेल। तो जी कि आप जब एज अ फ्रेशर भी स्टार्ट करते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप अच्छी वैल्यू क्रिएट करेंगे जाके, तो they have no harm in paying you 150K 120K, but that's also depending upon your work. So एक तो ये चीज थी। दूसरा, this is the place why healthcare hustlers come in the spot कि medical billing, scribing और coding courses, there are a lot of courses, theory courses, Coursera पे, Udemy पे, लेकिन जो हम एक VN लेके चल रहे हैं वो VN ये है कि हम आपको एक लाइव और इंटरेक्टिव सेशंस में बताना चाहते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज। आप अगर जीरो एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं और आपको नहीं पता, यू विल बी एबल टू डू दिस, तो आप एक लेवल पे आ जाते हैं। तो मैं अजहर साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है कि एक फ्रेशर आता है और दूसरा एक फ्रेशर उसके साथ आता है और एक फ्रेशर के पास लेट्स से हेल्थ केयर हसलर्स का कोई सर्टिफिकेशन है, मेडिकल बिलिंग की बात कर लेते हैं, और ये फ्रेशर की पोस्ट है, तो उन दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा? प्लस आपका हेल्थ केयर हसलर्स के जो आपके पास ट्रेनीज आए उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मेडिकल बिलिंग कंपनीज भी जितनी भी है ना, तो वो भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि वो कोई ऐसा रिसोर्स हायर कर लें जिसके ऊपर उनकी एफर्ट ज़्यादा लगे। ठीक है, या लाइक उनको थियोरेटिकल चीज़ें समझाएं और फिर उनका माइंड मेक करें कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। अब मेरे ख्याल से जितनी भी ऑडियंस हमारे पास है, वो अब ज्वाइन करने से 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले या 30 मिनट पहले तक, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेडिकल बिलिंग का शायद बहुत सारे लोगों ने नाम ही पहले दफ़ा सुना हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अभी देखें, अगर एक सेशन 30 मिनट का हुआ है तो आपको कम से कम कुछ 2 4 5 10 वर्ड्स आपको नए सीखने को मिले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर हमारे पास मेडिकल बिलिंग कंपनी में कोई भी फ्रेशर आता है और एक कोई हेल्थ केयर हसलर से अगर आता है इंटरव्यू देने, तो हम ना उसको यही जजमेंट करते हैं कि किसको बेसिक्स पता है, किसको इंडस्ट्री के नाम का पता है। अब एक फ्रेशर हमारे पास आता है, उसको यही नहीं पता होता कि मेडिकल बिलिंग क्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, यूएस में है। मगर कोई अगर या कहीं से ये करके आता है, उसको बेसिक्स का पता होता है, तो फिर हमारी डेफिनेटली प्रायोरिटी जो है मेडिकल बिलिंग कंपनी की उन्हीं कैंडिडेट की तरफ जाती है कि जिनको एटलीस्ट बेसिक्स का पता है। ओके, सो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि राइट नाउ हेल्थ केयर हसलर्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान जो कि 2 साल से मेडिकल स्क्राइबिंग, खास तौर पे मेडिकल स्क्राइबिंग की स्किल से हमने स्टार्ट लिया था, वो सिखा रहा है। और ये जितनी भी हमने प्लेसिंग्स की बात की है, वीओबी, फ्रंट डेस्क, आने वाले वक्त में कुछ ये चीज़ें और भी ऐड होने वाली हैं, लेकिन राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान गिविंग द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो कि आप स्क्रैबिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैरियर पाथ इन मेडिकल बिलिंग, व्हाट आर द डिफरेंट जॉब रोल्स अवेलेबल? आरसीएम जो कि हमने बात कर ली है, एंड वेयर जी डज द न्यू पर्सन टिपिकली स्टार्ट, हाउ डज द कैरियर ग्रो फ्रॉम देयर? अब एक नया शख्स आपके पास, हमारे पास आया है हेल्थ केयर रेसलर में, वो हमारे पास सीखेगा,
तो अब उसके बाद आपके पास आएगा तो वहाँ वो कहाँ से स्टार्ट लेगा, क्या उसको दोबारा ट्रेन किया जाता है और क्या उसको इंडस्ट्री के लिहाज से और कंपनी के लिहाज से दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है? इस पर थोड़ा सा एक रोशनी डालिएगा। अच्छा, ऐसा होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक वो रिसोर्स आता है और उसने ना हेल्थ केयर हसलर से बेसिक मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट और ये कोर्स वगैरह किया हुआ होता है, तो हमारी जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट ये होती है कि हम उसको ना लाइव वर्क असाइन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये लाइक हम किसी ऐसे टास्क पे उसको बिठा दें और उसको, क्योंकि आइडिया तो होगा, फर्स्ट जो टास्क है वो वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट है, ठीक है, VOB है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और जिसकी कम्युनिकेशन मीन्स के वो इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि इसमें ना इंश्योरेंस से भी आपने कॉल करनी पड़ती है, और ये कॉल सेंटर वाला नहीं है। यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है उसको मैं पहली चीज क्लियर कर दूं कि ये मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में कॉल सेंटर वाला प्रेशर या कॉल सेंटर वाली चीज कोई नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप इंश्योरेंस को कॉल करोगे, अदरवाइज आपकी बहुत सारी चीजें आपकी विदाउट कॉल सिस्टमेटिकली आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हम उसकी देखते हैं कि उसकी स्किल सेट क्या है और उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई कोर्सेज करके आया होगा तो उसको फिर हम वेरी फर्स्ट डे लाइव काम असाइन करते हैं और उसकी स्किल सेट के मुताबिक स्टार्ट तो हम VOB से करते हैं। अगर VOB में वो बहुत अच्छा हो गया फिर हम उसको आगे स्टेप पे मूव करते हैं, चार्ज एंट्री वगैरह सबमिशन पे, फिर इसी तरह वो पेमेंट पोस्टिंग का एक फील्ड आ जाती है, फिर वो डिनाइल मैनेजमेंट की फील्ड आ जाती है, AR रिपोर्टिंग और पेशेंट बिलिंग, और ये सारी चीज़ें हम उसको मूव करते रहते हैं। ओके, सो क्या ऐसी स्किल्स हैं, टूल्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जो कि किसी शख्स को उनके बारे में पता होना चाहिए? वैसे तो हम अपने कोर्स में ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द जनरल ऑडियंस ऐसी क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? और एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा है क्या वो ही मेडिकल बिलिंग करेगा, क्योंकि मेडिकल का लफ्ज आ रहा है इसमें। तो आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या आप भी मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं और क्या इसके लिए मेडिकल का बैकग्राउंड जरूरी है? नहीं, मेडिकल मैं अगर आप सब ऑडियंस को बताऊं तो मैंने मास्टर इन फिजिक्स में मास्टर किया हुआ है, ठीक है। तो बस मैं अभी हूँ फील्ड में ओवर अ डिकेड। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, मेडिकल वालों का ये होता है कि मेडिकल वाले अगर उनका बैकग्राउंड है तो वो स्क्राइबिंग की तरफ जाएं या मेडिकल कोडिंग की तरफ जाएं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, मेडिकल कोडिंग और मेडिकल उसके लिए मेडिकल स्क्राइबिंग की तरफ। तो मेडिकल कोडिंग की भी बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है, US में 4 ईयर की डिग्री है, उसकी सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल वाले ही मेडिकल बिलिंग कर सकते हैं। वो जो आपको अगर कोई भी जितनी भी ऑडियंस है, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का आपका वो टेक्स हैवी होना चाहिए, कम्युनिकेशन, मेडिकल बिलिंग का नॉलेज और लीडरशिप और रिपोर्टिंग एनालिटिकल स्किल्स, अगर आपके पास ये 4-5 चीज़ें हैं तो आप इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के लीडर बन सकते हो। यस, और इसके लिए मेडिकल का बैकग्राउंड जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास मेडिकल का बैकग्राउंड है तो टर्मिनोलॉजीज में बात करने में, इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करने में आपको एक एज दिया जा सकता है, क्योंकि आपको वो टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी पता है जो कि अभी आउट ऑफ द फील्ड लोगों ने सीखनी है। और स्क्राइबिंग में तो खास तौर पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रेफर किया जाता है, और वैसे ही उस पर रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की जो पेशेंट से कम्युनिकेशन है उसको जब आप फॉर्मली नोट्स में लिखते हैं उसमें वो आम एक शख्स नहीं लिख सकता जब तक आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अजहर साहब बहुत ज़बरदस्त 12 साल का कैरियर है, और हम देखते हैं कि आपने बिल्कुल बेसिक बिलिंग वाली साइड से आपने स्टार्ट किया और आज आप इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन ये अर्निंग करना चाहते हैं, रिमोटली अर्निंग करना चाहते हैं बेसिकली, और इस इंडस्ट्री से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक एडवाइस क्या होगी जो आज स्टार्ट ले रहे हैं? अच्छा, इनके लिए एडवाइस यही है कि डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। मतलब हमने वेट नहीं करना, आप लोग स्टार्ट लें। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सब यहाँ पे माशाल्लाह से जितनी भी ऑडियंस है सारे ही वेल एजुकेटेड होंगे। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, 5 ईयर लाइक
कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जो है वो क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि डैमेज हुई थी। मगर ये एक हेल्थ केयर, यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी थी जिसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, इवन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बूस्ट ही आया था, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्किल है कि आप, लाजमी नहीं है कि आप जॉब की तरफ ही जाएं। लेट सपोज अगर आपके पास क्लाइंट मिल जाता है, अपने अपने आपको क्लाइंट मिलते हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम रिमोटली काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको मेडिकल बिलिंग, कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें, आपको सर्टिफिकेशन तो मस्ट है, आपने करनी है, तभी आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेशन करेंगे, आपको मेडिकल बिलिंग का नॉलेज हो जाएगा, फिर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको बताए जाएंगे कि आप यहाँ पे सर्च करें, आपको खुद से चीज़ों का आइडिया होता जाएगा कि यहाँ पे जो है ना, यूएस के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे मतलब ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं क्लाइंट को रीच आउट करूँ। आप लोगों की अपनी अपनी स्किल सेट आपकी वो होंगी कि किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, किसी की जो है ना एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को रीच आउट करके डायरेक्ट अपने क्लाइंट लेके अपना कैरियर सिक्योर कर सकता है। और ये मतलब बिल्कुल सिक्योर कैरियर है और बहुत ग्रोइंग कैरियर है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं बिफोर आपकी अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं, मेरी एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, और वो क्यूरियोसिटी ये है कि जो डायरेक्ट क्लाइंट एक बंदा हायर कर लेता, ले लेता होता है, कहीं से ग्रैब कर लेता है अपॉर्चुनिटी को, और डायरेक्ट क्लाइंट मिल गया, क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि कोई ऑनलाइन रिमोटली मेडिकल बिलिंग, स्क्राइबिंग या इस इंडस्ट्री से पर मंथ मोर देन 4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस कमा रहा हो, या इससे भी ज्यादा कमा रहा हो? कुछ ऐसा आपने कभी सुना, या आपके एक्सपीरियंस में ये चीज है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स भी आए हैं, मैं 5-12 ईयर्स हैं, तो कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं कि उनका लक भी गए हैं, उनकी स्किल सेट भी गए हैं, जो भी आप कहें। तो इवन वो 400 के 500 के, ये छोटी चीज़ है, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल, इसी मंथ की एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे पास एक वीए था, वीए कहते हैं हम वर्चुअल असिस्टेंट को, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट, आप एक और फील्ड है मेडिकल बिलिंग में ही है, वर्चुअल असिस्टेंट उसको कहते हैं कि जो समझ लें ऑलराउंडर हो, ठीक है, हर काम कर सकता हो, उसको प्रैक्टिस चलाना आता हो। प्रैक्टिस, यहाँ पे एक नया वर्ड निकला है, प्रैक्टिस। बेसिकली वहाँ पे हमारे यहाँ जो क्लिनिक है उसको कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। सारे काम जो भी डॉक्टर का ऑफिस में होता है उसको प्रैक्टिस कहते हैं, सॉरी। तो उसको, वो वीए था, वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसको ना 2 क्लाइंट्स ने रीच आउट किया, कहीं उसकी प्रोफाइल थी, तो वो वहाँ पे एक डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उसने रीच आउट किया, क्योंकि उसका मेडिकल बिलिंग का नॉलेज था। तो उसको 1500 यूएस डॉलर के 2 क्लाइंट मिल गए, ठीक है। तो अब वो रिमोटली बैठ के 3000 यूएस डॉलर इन अ मंथ आप वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको आप लगा लें, अगर 3000 यूएस डॉलर है, और अगर उसको लगाएं तो मेरे ख्याल से वो 800 के या 900 के आसपास वो अर्न कर रहा है। वेरी नाइस। सो ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि इस इंडस्ट्री में कितना कैलिबर है। एंड आई पर्सनली नो समवन जिसने, जो कि डायरेक्टली यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, और दैट पर्सन इज अर्निंग $5500 पर मंथ, एंड इट्स अराउंड तकरीबन 9 लाख रुपए। एंड देयर इज नॉट एनी पोस्ट इन पाकिस्तान, नॉट स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए तो खास तौर पे, जहाँ पे हमें 50,000 60,000 पर मंथ में 8 घंटे काम करने के लिए दिया जाता है। कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन रुपीज आपको पर मंथ पे कर रही हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवन यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा जल्दी से ऐड जी कर जी। दूं कि जिस इंडस्ट्री में मैं अभी एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, ये 2025 में 25 पीपल से, जस्ट 25, ठीक है। और अभी 2026 में मतलब क्लाइंटेज आई है और वो सारा कुछ हुआ है, तो अभी हम लोग मोर देन 220 पीपल्स, 220 पीपल्स मीन्स के 220 लोगों की जॉब वहाँ पे लगी हुई। सो दिस शोज के इंडस्ट्री में किस तरह ग्रोथ हो रही है, और आने वाले वक्त में कितना इसमें कैलिबर है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अभी अपने आप को पुल अप करके इस इंडस्ट्री में एंटर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले वक्त में आई कैन सी द सैचुरेशन। अब तक तो नहीं थी, लेकिन अब आने वाले वक्त में सैचुरेशन आना शुरू हो गई है। इससे पहले कि सैचुरेशन हो, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। मिस्टर अजहर, आपने
150 हेल्थ केयर क्लाइंट्स को मैनेज किया हुआ है, और आप इस दौरान अपनी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रखते रहे, और आप क्या गाइड करेंगे उससे रिलेटेड अपने ऑडियंस को? अच्छा, इसमें 150 क्लाइंट्स, हेल्थ केयर क्लाइंट्स को मेंटेन करना, उसमें यही है कि सबसे पहले जो बीइंग एन डायरेक्टर ऑपरेशन मैंने जो किया काम, वो किया है टीम डेवलपमेंट। ठीक है, लाइक किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो 150 क्लाइंट्स को अकेले मैनेज करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने की है टीम डेवलपमेंट की है, और टीम डेवलपमेंट के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो बाकी लोगों को भी लेके चल सकें। ठीक है, उसमें से लीडर्स वही हमने चूज़ किए हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो जिनका इंडस्ट्री का नॉलेज हो, तो वो आगे से भी मतलब बाकी लोगों को भी और बाकी क्लाइंट्स को भी, ठीक है, वो अपनी गाइड कर सकें। बाकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, टीम डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, ये चीज़ें, 3 चीज़ें मैंने की हैं। बाकी टीम डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें करके, ये 3-4 चीज़ें करने के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हम 150 क्लाइंट्स को स्मूथली हैंडल कर रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। हम उसको एंड ऑफ द सेशन पे सब क्वेश्चन को बारी बारी आंसर करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या है मेडिकल बिलिंग ऑपरेशंस में, या जो कि मेडिकल बिलर्स बना करते हुए, बिलिंग करते हुए करते हैं, और उस चीज को कैसे डिफरेंट किया जाए? देखें, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है ना, तो वो तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, वीओबी कर रहा है, किसी पेशेंट की इंश्योरेंस वेरीफाई वो कर रहा है, वो वहीं पे मिस्टेक कर दी, तो उसने फर्स्ट स्टेप अगर मिस्टेक कर दिया तो समझ लें कि वो उसने फर्स्ट स्टेप पे ही लॉस कर दिया। ठीक है, और अगर किसी ने वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट ठीक की, फिर चार्ज एंट्री वाला अगर कोई बिलर है, चार्ज एंट्री कर रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक है, कोडर है, कोडिंग है, और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसने अगर वहां पे मिस्टेक कर दी तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। देखें, यहाँ से हम बैठ के डॉक्टर्स का रेवेन्यू मैनेज कर रहे हैं, यूएस हेल्थ केयर डॉक्टर्स का। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी एक मिस्टेक भी डॉक्टर के रेवेन्यू को क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए ना इस चीज़ का बड़ा वो मैटर कर रहा होता है कि वहाँ पे भी अगर एक डॉक्टर है अपना एक क्लिनिक चला रहा है, तो उसने वहाँ पे भी सैलरीज देनी है, वहाँ पे भी उसका स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर ऑफिस के अपने भी तो एक्सपेंसेस होते हैं ना। तो उनको अगर आप यहाँ से बैठ के मैनेज कर रहे हैं और कॉमन मिस्टेक, छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू डिस्टर्ब होगा डॉक्टर का, तो डेफिनेटली फिर डॉक्टर की फ्रस्ट्रेशन होगी, वो कहेगा मेरी पेमेंट नहीं आ रही टाइमली, क्योंकि हर आपकी मिस्टेक डॉक्टर के रेवेन्यू को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स कॉमन सी होती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट में किसी ने मिस्टेक कर दी, किसी ने क्लेम सब इंटर करते हुए सीपीटी मतलब जो सर्विस है, कोड गलत इंटर कर दिया, क्योंकि हर कोड की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। अगर आपने दूसरा कोड, डॉक्टर ने दूसरा कोड की सर्विस दी, आपने दूसरा कोड लगा दिया, पेमेंट डाउन हुई, मिस्टेक हुई, वो पेमेंट आपको नहीं, डॉक्टर को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, फिर पेमेंट पोस्टिंग है, वहाँ पे अगर आपने किसी को मिस्टेक की तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी इनको फिक्स कैसे कर सकते हैं, वो ये इस तरह फिक्स कर सकते हैं कि आपको मिस्टेक्स की इम्पोर्टेंस का पता हो, कि अगर एक मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक्स का इम्पैक्ट क्या हुआ है और उसकी इम्पोर्टेंस, तो ताकि आप आगे नेक्स्ट उसको रिपीट ना करें बल्कि उसको फिक्स करें। वेरी नाइस एडवाइस। एंड ये सब अगर फॉलो करेंगे जो बिलिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी फील्ड में ग्रो भी करेंगे, और अपने उसमें उनको प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी होंगे। तो मिस्टर अगर आप बताइए कि एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस बिलिंग कंपनी में आपका दिन किस तरह का होता है, आप क्या काम करते हैं, और प्लस मुझे ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट किस लेवल से किया था, आपकी फर्स्ट पोस्ट जो थी वो क्या थी? अच्छा, 2014 में मैं एज अ बिलिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब हर कंपनी ने अपना अपना एक वो बनाया हुआ है। 2014 में मैंने एज अ बिलिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेडिकल बिलिंग में बीई कहते हैं, बिलिंग एग्जीक्यूटिव। बिलिंग एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं कि जो समझ लें एक किस्म का स्टार्ट ले रहा हो। ठीक है, और मैंने भी मतलब ट्रेनिंग लेके फिर वो अपना करियर स्टार्ट किया था। तो बिलिंग एग्जीक्यूटिव वो होता है जो समझ लें बेसिक लेवल के काम कर सकता हो, बेसिक लेवल के लाइक वीओबी कर सकता हो, चार्ज एंट्री, डेटा एंट्री कर सकता हो, और इस तरह से। ठीक है, तो उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीज़ें हैं कि मैंने उसको
मतलब हर स्टेप्स पे गुजर के फिर आगे जाता गया अपनी कम्युनिकेशन, अपनी मेडिकल बिलिंग का डेप्थ नॉलेज और ये सारी चीज़ें इनहेंस करने के बाद मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। ठीक है, बाकी जो चीज़ है कि मेरा टाइम अभी मैं कैसे मैनेज करता हूँ बीइंग अ डायरेक्टर ऑपरेशन। तो बीइंग अ डायरेक्टर ऑपरेशन तीन चार चीज़ें हैं वो जो मैंने मेरे ख्याल से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक टीम डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और क्लाइंट की रिलेशनशिप, क्लाइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं और उसमें मतलब मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप और जो ऑपरेशन के जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट हैं और उनमें जो प्रोसेस बन चुके हैं उनकी केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, चेक एंड बैलेंस, चेक लिस्ट ये हमने बनाई हुई है, उसको इंश्योर करना होता है कि वो चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं। ग्रेट। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे आपके काम में। हम आगे चलते हैं, डिनायल मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू। हमने इस पे बेसिकली बात की है कि क्लेम्स जो होते हैं उसको बेसिकली क्लेम डिनायल होता क्या है। अब इस पे बेसिकली आपसे ये पूछते हैं कि क्लेम्स जो होते हैं वो डिनायल होते क्या है, मोस्ट बेसिक रीजन क्या है, और जो हाई परफॉर्मिंग बिलिंग टीम्स होती हैं वो इसको कैसे मैनेज कर रही होती हैं। आपने बेसिकली हल्का सा टच किया, बस वील जस्ट डू इट क्विक और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ठीक है, डिनाइल मैनेजमेंट में होता क्या है असल में, यूएस में ना हर चीज का कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइक सर्विसेज का कोडिंग है, डॉक्टर ने क्या सर्विस दी उसका भी कोडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, क्लेम सबमिशन आप करते हैं उसका भी एक कोडिंग सिस्टम है। फिर इसी तरह डिनाइल मैनेजमेंट, जब इंश्योरेंस के पास बिल जाता है तो वो जब डिनाई करते हैं तो एक स्पेसिफिक कोड लगा के भेजते हैं, वो भी एक कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें से भी आपको ये आइडेंटिफिकेशन, जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कोड आया है, डिनाइल होके पेमेंट नहीं आई, ये कोड लगा हुआ है, इस कोड का क्या मतलब है, इस पे मैं क्या एक्शन लूंगा तो क्लेम जो भी बिल है दोबारा पे हो जाएगा। कॉमन डिनाइल्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल भेजा और इंश्योरेंस एक कोड लगा के भेजती है 26 या 27। अब 26 और 27 का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट की कवरेज ही नहीं थी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जब हमने वीओबी की थी उस टाइम मिस्टेक कर दी, हमें उसी टाइम पे डॉक्टर को बता देना चाहिए था कि इस पेशेंट की तो इंश्योरेंस की कवरेज ही नहीं है। ठीक है, आप इससे कैश ले लो। फिर इस तरह के डिनाइल आते हैं। फिर इस तरह के आते हैं कि एक इंश्योरेंस कह रही होती है कि ये जो बिल आपने हमें भेजा है, CO109 एक कोड होता है। ठीक है, इंश्योरेंस ये कह रही होती है कि ये बिल जो मुझे भेजा है ये मतलब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कोई और है। ठीक है, तो उसमें भी बड़ी फील्ड है कि मतलब हमें कैसे, क्योंकि यूएस में ना दो दो इंश्योरेंसेस भी होती हैं कि पेशेंट की, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हमने प्राइमरी को भेजा तो सेकेंडरी कह रही है कि नहीं वो मैं सेकेंडरी हूँ, सेकेंडरी कह रही है नहीं वो प्राइमरी है, तो वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। तो वो डिनाइल मैनेजमेंट में कॉमन ही डिनाइल्स आते हैं, कोई ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 10 12 15 20 डिनाइल ऐसे होते हैं जो कॉमनली आ रहे होते हैं और वो बंदा सीख जाता है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपका जो क्लेम रिजेक्ट करती हैं, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बिलर्स और कोडर्स बैठे हुए हैं जो आपके क्लेम को एंटी करना चाह रहे हैं, दैट्स राइट, और ये भी उसमें आपके लिए ये है कि उनके पास ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट सिस्टम है। करती है। यस। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी इंश्योरेंसेज ऐसी हैं कि उनके ना अपने रूल बेस्ड सिस्टम्स हैं। ठीक है, आरबीएस उसको कहते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम्स। अब फॉर एग्जांपल यूएस में ना सबसे जो बड़ी इंश्योरेंस है मेडिकेयर, मेडिकेयर इंश्योरेंस है। उसका इतना स्ट्रॉन्ग रूल बेस्ड सिस्टम है कि आपने क्लेम सबमिट किया और उनके रूल बेस्ड सिस्टम से ना क्लेम इंटर होने से पहले ही आपके पास, अगर तो वो उसको पास नहीं करेगा तो आपके पास डिनाइल आ जाएगा विद इन 7 डेज। ठीक है, और देखें अब आप मेडिकेयर इंश्योरेंस है वो विद इन 2 वीक्स क्लेम की पेमेंट रिलीज कर देती है। ठीक है, और अगर ये चीज देखें अगर डिनाई हो गई ना तो आपने डॉक्टर का रेवेन्यू डिले कर दिया। ठीक है, और ये इंश्योरेंस के रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लेम्स ना वो कर देते हैं। फिर अगर उसमें ये नहीं होता तो फिर आपकी ना जो इंश्योरेंस क्या करती है कि इंश्योरेंस जब पेमेंट रिलीज करती है तो वो एक उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, EOB। ठीक है, तो वो एक पेशेंट को भेज रही होती है और एक डॉक्टर को भेज रही होती है। तो फिर डॉक्टर उसके बॉटम में लिखा हुआ होता है कि ये क्या डिनाइल है और क्या इसका वो है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इसमें एक पोस्ट होती है जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स और MBBS डिग्री होल्डर्स जा सकते हैं, उसका नाम होता है
मेडिकल क्लेम्स ऑफिसर। ये इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये हॉस्पिटल से जो आपके क्लेम्स ट्रीटमेंट्स के आते होते हैं, ये उसको एवेल्युएट करते हैं और ये इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि आया ये ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए ज़रूरी थी या नहीं थी। अगर ज़रूरी नहीं थी तो फिर वो इसको एक डिनायल या इस पे कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी टीम काम कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है जब दोनों टीम्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं तो आइदर वे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रही होती हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल ये होता क्या है, एआर स्पेशलिस्ट ये क्या होता है, और ये जो इसका बेसिकली काम क्या है और ये किस तरह काम कर रहा होता है, ये इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल अगर आप इसको कहें अनपेड बैलेंस, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में, अनपेड बैलेंस फ्रॉम इंश्योरेंस। लाइक इंश्योरेंस को आपने क्लेम बिल भेजा है और इंश्योरेंस ने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो ये कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। और यही इसी पे मेन जो है ना मेडिकल बिलिंग में डिनाइल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इस पे अगर आप किसी भी ऑडियंस की जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आपकी इन 2 सेट्स में आपकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को आप लीड भी कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में अर्निंग भी कर सकते हैं और आप इसको सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है कि जब यूएस में आप जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं उनका ना एक सेट टाइम फ्रेम होता है कि उन्होंने इतने दिनों में क्लेम सबमिट करना और क्लेम प्रोसेस करना होता है, यानी या तो पे करना होता है या डिनाई करना होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बिल आपने भेजा हुआ है और भेजे हुए उसको 30 दिन गुजर गए हैं और उसकी पेमेंट नहीं आई, ठीक है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा 0 to 30 डेज में, कि 30 डेज हो गए इसको और ये बिल हमने भेजा हुआ है, इसकी सब पेमेंट नहीं आई। फिर इसी तरह 31 to 60 डेज की एक बकेट होती है, उसको AR बकेट कहते हैं, स्लॉट वाइज बकेट एजिंग कहते हैं। एजिंग का वर्ड भी मेडिकल बिलिंग में बहुत यूज होता है। तो वो अगर 31 to 60 डेज यानी विद इन 60 डेज भी अगर उसकी पेमेंट नहीं आई तो वो उसमें फॉल कर जाता है। फिर 61 to 90 डेज होते हैं, अगर वो 90 डेज हो गए हैं उसकी पेमेंट नहीं आई वो उधर फॉल कर जाता है। इसी तरह 120 प्लस, ठीक है। तो उधर भी यहाँ यूएस में भी एक KPI है MGMA स्टैंडर्ड, वो ये कहती है कि अगर किसी भी प्रैक्टिस या किसी भी डॉक्टर की एजिंग 60 प्लस में लेस देन 15% पड़ी हुई है तो उस प्रैक्टिस की अकाउंट रिसीवेबल या प्रैक्टिस की हेल्थ या डॉक्टर की हेल्थ, क्लिनिक की हेल्थ, उसके रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की हेल्थ मेंटेन है। और अगर उससे एक्सीड है तो वो फिर उसकी मतलब हेल्थ बैड है, उसको हमें अकाउंट रिसीवेबल पे काम करना। तो मेडिकल बिलिंग में अकाउंट रिसीवेबल, डिनाइल मैनेजमेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा बहुत देखने को ज़्यादा। मिलती हैं। और आप जब कभी भी इंटरनेट पे या इंडीड पे लिंक्डइन पे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इनकी जॉब देखने का। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये टेक्नोलॉजी स्पेशली एआई ऑटोमेशन जो चेंज ऑफ मेडिकल बिलिंग इसकी वजह से कैसे इफेक्ट होगी, क्या जो भी काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स जाने वाली हैं, क्या इसका कोई फ्यूचर नहीं रहा, ये हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इसमें, आपसे मैं जानना चाहूँगा बिफोर आप स्टार्ट करें स्क्रैबिंग के बारे में, मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे फिजिशियंस ने AI स्क्राइब्स रख ली हैं। उसका मतलब ये होता है कि अब स्क्राइब जो होगा, जो AI होगा, वो आपकी बातों को स्क्रैबिंग करेगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको चार्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पर भी जो सुपरविजन है वो मेडिकल स्क्राइब की चाहिए होती है, क्योंकि अब एक मशीन है, AI है, वो बातों को चार्ट तो कर देगा, लेकिन वो बहुत सारी बातों को ऐसे भी चार्ट कर देगा जो चार्ट करने की नहीं थी। तो उस चीज को प्रॉपर जगह पे प्लेस करने के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, ये जो मेडिकल स्क्राइब होता है वो उस डाटा को कर रहा होता है। तो इनकी मेडिकल स्क्राइब की AI की वजह से ये कह सकते हैं कि काम कम होगा, लेकिन काम जा नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने मशीन बनाई है। मशीन जो है वो इंसान को उस तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। अजहर भाई, आपकी मैं इस पे इंसाइट लेना चाहूंगा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। AI से बजाय हमें वो करने के डरने के कि AI आ गई तो काम रिज्यूम हो गया, नहीं, AI आ गई है मगर चलाने वाले तो हम है ना उसको, और उसको हमें ये लर्न करना है कि हम कैसे AI को यूटिलाइज करके हम अपने काम में आसानी पैदा कर सकते हैं। और स्टिल वही आप वाली बात है कि AI जस्ट एज अ एक मशीन है, चलाना तो उसको हमने ही है, ठीक है। तो
हमें ये बजाय उसके फेयर होने के हमें ये सीखना चाहिए कि हमने एआई को यूटिलाइज करके अपने काम में कितनी बेहतरी और कितनी इम्प्रूवमेंट लानी है। ऑब्वियसली ऑटोमेशन अगर होती है एआई से तो काम तो थोड़ा सा वो होता है, मतलब कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है, मगर स्टिल उसकी चेक एंड बैलेंस और वो सारी चीज़ें करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। तो इससे आप मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये होना चाहिए कि हमें उसको यूज़ और उसको अपना फ्यूचर जो है ना, हमने इसी से वो करना है कि हम उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं प्रोफेशनली, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें और उसको हेल्पफुल बना सकें अपने लिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे एक अमेरिकन फिजिशियन ने रीच आउट किया था और उसने मुझे ये कहा कि मैं टेब्रा, आपने टेब्रा के बारे में सुना होगा कि वो जो सिस्टम यूज करते हैं, तो टेब्रा का सिस्टम वो यूज करता था और उसका एआई यूज करता चार्टिंग के लिए। एंड ही सेड कि यार मेरे पास 500 नोट्स या 1000 नोट्स पड़े हुए हैं और वो टेब्रा ने स्क्राइब तो कर दिए, लेकिन अब उनको उनकी जगह उठा के प्लेस करना है। कैन यू डू इट इन अ मंथ? तो मेरे लिए काम कर दो, आई विल गिव यू $5000। तो आई वॉज वेरी बिजी, तो मैंने खैर उसको एक्सक्यूज किया। लेकिन दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि आप इसको भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव टू बी अप टू डेट, यू हैव टू बी अप टू डेट। आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए, आपका काम कैसे के चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसे हमने डिस्कस कर लिए, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि मैनी पीपल डू मेडिकल बिलिंग कोर्सेज बट स्टिल फील लॉस्ट, यानी कि जो कोर्सेरा से करते हैं, यूडेमी से कर लेते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई रियल गाइडेंस नहीं मिलती। तो इसमें क्या मिसिंग है और हेल्थ केयर हसलर क्या डिफरेंट कर रहा है? व्हाई शुड अवर कम्युनिटी ट्रस्ट एंड ग्रो विद दिस प्लेटफॉर्म? आपने तो खैर हेल्थ केयर हसलर के लोगों के साथ काम भी किया हुआ है और आप उनको गाय बगाए इंटरव्यू भी करते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? जी ऐसा ही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो जो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे होते हैं उनके ना इतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग और क्लियर नहीं होते जितने के हेल्थ केयर रेसलर वालों के होते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर रेसलर्स में एक मतलब डेडिकेटेड रिसोर्स आपको ट्रेन कर रहा होता है, सेशंस हो रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं बजाय इसके कि अगर कोई ऑनलाइन बैठ के खुद से रिसर्च करे, खुद से वो करे, तो उनके कंसेप्ट इतने नहीं होते। वो जस्ट एक आप अपनी टर्म्स में कह सकते हैं कि रट्टा तो लगा सकते हैं, मगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मेरे ख्याल से ये हेल्थ केयर रेसलर्स की तरफ से जो है ना, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है न्यू बिगिनर्स को के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए। उसमें मेडिकल या कोई ऐसी कोई वो नहीं है। मेडिकल अगर कोई है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है, मगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी ने अगर सिंपल ग्रेजुएशन है कोई अदर फील्ड में किया हुआ तो वो मेडिकल बिलिंग नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मतलब न्यू बिगिनर्स के लिए कि वो आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं यहाँ से, कोडिंग करें, वो सर्टिफिकेशन करें, और सर्टिफिकेशन करने के बाद उनको डिफरेंस खुद ही फील होगा जब वो किसी मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू देंगे। तो एटलीस्ट जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपको मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो वो अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से 10 में से 8 या 9 के तो आप आंसर दे सकते हो अगर आप हेल्थ केयर रेसलर से कोर्स और अपनी थियोरेटिकल वो कर सकते हो, कोर्सेज करते हो, तो आप 8 से 10 क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। अच्छा, और इसी इजीली से जॉब रिलेटेड है। मिल सकती जी है जी जी, आपको। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा मुझसे बहुत सारी दफा क्वेश्चन आता है कि सर मैंने कोर्सेरा से कोर्स किया हुआ है, यूडेमी से किया हुआ है, तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, दे आर गुड कोर्सेज, उनकी अच्छी नॉलेज है वो, लेकिन दैट इज एक्चुअली थ्योरी। अब मैं और अजहर भाई जिस तरह बैठ के बात कर रहे हैं, अब हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, हमारे लिए रियल सेशंस में बिल्कुल इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन अब क्या कोर्सेरा आपको थ्योरी के अंदर से निकल के आंसर करेगा? नो। तो ह्यूमन एक नेचर होती है कि वो इंटरेक्टिव चीजों को परसीव करता है और उसको ज्यादा एक्सेप्ट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और वो है आपका फाइनल मैसेज क्या है हमारी यहाँ के जो यूथ है, जो लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, जो हेल्थ केयर में करियर स्क्राइबिंग, बिलिंग, कोडिंग, वीओबी, फ्रंट डेस्क, ये सब कुछ करना चाहते हैं और जो कि अभी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए, आपका उनके लिए क्या पैगाम है? और इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस भी लेंगे। अच्छा, सिंपल है, इन 3 वर्ड, स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन लर्निंग, बस दैट्स इट। ये 3 चीजें
कि आज से स्टार्ट करें, आप कंसिस्टेंट रहें और लर्निंग पे फोकस करें, और एक टाइम पे आके आपको इसके फ्रूट्स, मतलब किसी अदर इंडस्ट्री के फ्रूट आपको लेट मिलते हैं, इसके आपको फ्रूट विद इन 6 months, विद इन ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे आप उसको किस डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अच्छा, अब हम अजहर भाई फास्टली ये क्विकली क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को तो हमने कवर कर लिया है। जो चीज़ें बिलिंग से रिलेटेड हुई, जो क्वेश्चन का आंसर ना हुआ, तो मैं आप पे वो पास कर दूंगा जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज होंगी, और जो क्वेश्चन जो मेरी डोमेन में हुए तो मैं उनको आंसर कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी गेट डॉक्टर ऑन बोर्ड डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। हमजा खान ने क्वेश्चन पूछा है। मेरी तरफ से थोड़ी सी इंसाइट इसमें यह है कि आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करें, अपनी चीज़ों को पोस्ट करते रहा करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, सर्टिफिकेशंस लेते रहें, तो आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स खुद ही रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे जिस तरह काफ़ी सारे क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं, डेफिनेटली अजहर भाई को भी करते होंगे। तो ये मेरी तरफ से तो पैगाम ये है कि आप अपने आप पे काम कीजिए, क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं। अजहर भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनबोर्डिंग जो क्या नाम था, हमजा खान ऑनबोर्डिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्किल सेट है और आप उस चीज़ों को, मेडिकल बिलिंग की सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, तो आप डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके उसके पेन पॉइंट निकाल के कि डॉक्टर्स का क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो उसमें अपनी स्किल सेट उसको बता के आप डॉक्टर्स को उसका सोल्यूशन दे के आप उसको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनबोर्डिंग में ये है कि ये भी एक समझ एक किस्म की फील्ड ही है। तो ऑनबोर्डिंग में आप क्या कर सकते हैं कि, अच्छा उनका एक और क्वेश्चन आया है कि फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये अजहर भाई मैं ये इजाजत लेता रहूंगा। ये बस जो हम क्वेश्चन एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि वो ऊपर वाला क्वेश्चन रह जाए फिर नीचे वाला क्वेश्चन आंसर हो जाए इस तरह। ठीक है, तो हम इसको दोबारा लेके चलते हैं। जिनका कोई क्वेश्चन होगा तो साथ साथ करते रहेंगे। तो आप इसके बारे में जो भी उन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उस पर कोई इंसाइट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग यहाँ से बैठ के कर सकते हैं हम, वो मैंने बता चुका हूँ कि अगर आपके पास स्किल सेट है, आप कंप्लीट पैकेज है, मतलब उस डॉक्टर की सर्विसेज या डॉक्टर की सेटिस्फेक्शन को मीट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी दिव्या का। कंपनीज भी तो यहीं से बैठ के कर रही है ना। Yes, definitely, that's right. Okay, next question है दिव्या का, and she said, sir, how to choose which one field is best for us, either coding, billing or scribing? तो दिव्या, I will answer this question कि मेरी तो एक वीडियो बनी हुई है इस पे, लेकिन मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर तो आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो तीनों फील्ड में से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन स्क्राइबिंग इज बेनिफिशियल एंड मोर ऑफ फेवरेबल ऑप्शन, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं उनको स्क्रैबिंग में फेवर किया जाता है। और इसमें अजहर भाई भी मुझसे एग्री करेंगे कि बाकी जितने भी लोग होते हैं जो बिलिंग की टीम के होते हैं या और किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आपका कंपटीशन सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ रह जाता है। तो इसमें आपके पास चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप तीनों फील्ड में जा सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं अजहर भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमना तारिक का, एज अ डेंटिस्ट विच कैटेगरी इज बेटर फॉर मी एज आई एम टू। मैंने आंसर कर दिया। If someone wants to go non-clinical side in future as MBBS graduate, so which one is the, ये भी मैंने आपको आंसर कर दिया है। Which one is best for either part time? Divya, you can go to part time, full time. It doesn't matter. First, work on the skill, work on your skill, work on your certification, work on your self, और फिर उसके बाद आपको पार्ट टाइम भी वर्क मिल जाता है और फुल टाइम भी। ओके, सुहेब ने पूछा कि 40K USD पर एनम, यूएसडी की बात नहीं होती सुहेब। अजहर भाई ये बात कर रहे थे कि अगर आप बिल्कुल विद द जीरो नॉलेज आप एक मेडिकल बिलिंग कंपनी में चले जाते हैं कि जस्ट गिव मी अ वर्क, तो वो जो आपको बिल्कुल बेसिक काम सिखाने के पैसे दे रहे होते हैं वो 40-50 हज़ार पर मंथ की कह रहे थे, लेकिन वंस आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो यू कैन ग्रो इन दिस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी आपने अजहर भाई ने आंसर कर दिया कि कैन वी स्टार्ट मेडिकल बिलिंग इंडिपेंडेंटली, तो ये आपका आंसर हो चुका है ऑलरेडी। ओके, कैन यू पे टू द, क्वेश्चन समझ नहीं आया। From where we can get official HIPAA certification, note that free one wali. Okay, so Hamza, basically Healthcare Hustler is also offering a HIPAA certification after the assessment as well. So if you want to be part of the, you can get the HIPAA certification by just messaging our Instagram or our WhatsApp number, and they can share the form with you. He
इन सब फील्ड्स में क्या डिफरेंस है, लाइक ये अब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ यूएस हैव प्राइवेसी इश्यूज, तो इसके लिए आपको हिपा करना पड़ता है, तो मैंने अभी हिपा वाली बात को भी एड्रेस कर दिया है। हाउ मच आवर्स पर डे और पर मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब? तो स्क्रैबिंग के लिए तो, और मोस्टली आई गेस बिलिंग के लिए भी ऐसा ही होगा कि यूएस आवर्स में 6 to 3 AM पाकिस्तानी टाइम, और यूएस के टाइम के मुताबिक 8 AM और 9 AM to 5 PM। अगर भाई आप क्या इस पे इंसाइट देना चाहेंगे? जी ऐसा ही है। यूएस में ना 4 टाइम जोन है, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक। तो वो पाकिस्तान में हमारे जो टाइमिंग्स हैं वो शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक एक टाइम होता है, फिर 6 से 3 बजे तक, शाम 6 से रात 3 बजे तक, फिर एक टाइम है 7 बजे से लेके 4 बजे तक, और एक टाइम है रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो वो निर्भर करता है कि क्लाइंट कौन से टाइम जोन में फॉल कर रहा है, तो फिर आपको वही टाइम जोन जॉब के टाइम फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो साथ ही क्वेश्चन है कि कैन वी डू इट एज अ पार्ट टाइम? सो मेडिकल स्क्रैबिंग में तो इस तरह है कि अगर आपको ऑफलाइन स्क्रैबिंग मिल जाती है, ऑफलाइन स्क्रैबिंग का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के साथ आपने लाइव नोट्स नहीं लिखने, आपने अगले दिन तक नोट्स लिखने हैं, तो वो तो आप दिन में भी काम कर सकते हैं, तो आप यू कैन टेक इट एज अ पार्ट टाइम। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बिलिंग में भी पार्ट टाइम होता है, या कोई आपका इस तरह का मामला हो सकता है? जी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सिर्फ या तो बिलिंग कर रहा है, मतलब उसको क्लेम इंटर करने और बिल करने हैं, और वो अगर डॉक्टर ने आपको, क्लाइंट ने आपको ये अलाउ किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल 24 आवर्स या 48 आवर्स की डेडलाइन है, तो आप डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स से हट के भी कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। वो ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको अलाउ किया हुआ है कि डॉक्टर को आपकी प्रेजेंस उसके टाइम में नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने हेल्थ केयर हसलर से मेडिकल बिलिंग की है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब कभी भी मैं रिमोट जॉब्स दिखती हूँ तो उसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो एज अ फ्रेशर मुझे कैसे लेना चाहिए? तो मैं इस पे आपको आयशा ये कहूँगा कि आपको स्टार्ट में तो किसी कंपनी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग द एक्सपीरियंस थोड़ा सा, एंड देन आफ्टर गेटिंग इनटू द वर्क, अपने डायनामिक समझने के बाद थोड़ा बहुत फिर आपको पता चलेगा कि कैसे काम चलता है, एंड देन यू कैन हैव मोर अप्रिशिएटिव और द रिमोट जॉब्स एज वेल। तो अदर भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर आपको किसी इंडस्ट्री के साथ अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यस, इवन बहुत जो सारी इंडस्ट्री कंपनीज हैं ऐसी कि जो रिमोट वर्क भी ऑफर कर रही हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास सर्टिफिकेशन है और आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो वो फ्रॉम द स्टार्ट आपको ऑफिस में बुलाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। जैसे ही वो ये समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं, तो वो फिर आपको वर्क फ्रॉम होम मूव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्थ के हसलर से या अच्छी सी सर्टिफिकेशन लेके जा रहे हैं, उनके उनके लिए एक फ्रेशर वाली जॉब या ट्रेनिंग की नई वाली जॉब लेना कदरे उन लोगों के जिनको उसका बिल्कुल नहीं पता ज्यादा आसान है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, जोहा माजिद का क्वेश्चन है, फॉरगिव मी अगर मैं आपका गलत नाम ले रहा हूँ। आर देयर एनी कंपनीज हायरिंग अ ट्रेनी? डू हेल्थ केयर हसलर हायर? तो जैस हेल्थ केयर हसलर अपने स्टूडेंट्स को रेफर भी करती है टू द पार्टनर कंपनीज, और जब कभी भी जॉब अवेलेबल होती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रेफर भी करते हैं। तो यस, वी डू हेल्प अवर स्टूडेंट्स इन in having the positions and these things like that. Which platform is best for applying for remote jobs related to medical coding? जी अजहर भाई। रिलेटेड टू मेडिकल कोडिंग, ठीक है। मेडिकल कोडिंग के लिए एक तो अगर आप इन हाउस अगर आपको करते हैं ना, और आपके पास ऐसी सर्टिफिकेशन है, और आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं उनको से भी रीच आउट करके, उनको भी रीच आउट करके अपनी सर्विसेज की ऑफर कर सकती हैं कि ये मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मैं इसकी कोडिंग कर सकती हूँ। लेट्स सपोज अगर उनके पास काम है तो वो आपको डेफिनेटली देंगे। और अगर आप डायरेक्ट यूएस क्लाइंट को अगर आप रीच आउट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। ओके,
Which platform? How was your experience with healthcare hustler in medical billing course? आयशा के बारे में आयशा थी आपका, आयशा क्या नाम था, मुख्तार नाम था, क्या नाम था आपका? सॉरी, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो यू कैन ऑलवेज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट एज वेल. जोहा ने पूछा, फॉर मेडिकल बिलिंग डू वी नीड टू गेट मेडिकल कोडिंग नॉलेज एज वेल और अ प्रॉपर कोर्स ऑफ दैट? तो मैं ये कहूंगा कि इससे आपकी पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलेगा. तो अगर होगा तो बेहतर है. जी अजहर भाई. ऐसा ही है, और लाजमी नहीं है कि आपको मेडिकल बिलिंग के लिए मेडिकल कोडिंग आनी चाहिए, ये नहीं है. ठीक है, हाँ, अगर आपको कोडिंग आती है तो फिर तो आफ्टर आप आई मतलब आपकी रिसीव, तो यस, जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए. जी ठीक है, आई एम डन. ओके, सो आफ्टर आई रिसीव, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन काफी सारे हैं तो उनको खत्म किया जाए जल्दी. तो आफ्टर आई रिसीव माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम हेल्थ केयर असिस्टेंट, कब तक जॉब मिल जाती है? आपको कितना टाइम लगता है? और आप हमें जॉब सिक्योर करने में भी हेल्प करते हैं. सो मैंने बता दिया कि वी हेल्प इन सीवी मेकिंग एंड वी हेल्प इन हंटिंग फॉर द पोजीशंस, और हम शेयर भी करते हैं. और इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने पार्टनर कंपनीज को भी उनकी सीवी वगैरह रेफर करते रहते हैं. लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी. How many hours does one need to dedicate in order to generate a good income, provided if one is working full time? So I would say, put the line 8 to 9 hours. Azhar bhai, बिल्कुल ऐसे ही. 8 to 9 hours अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो 8 से 9 घंटे काफी हैं आपको अपनी स्किल को बूस्ट करने के लिए, प्लस आपको अपने आपको आउट परफॉर्म करने के लिए. सर क्या ये कोर्सेज फॉर्म डी ग्रेजुएट्स के लिए भी सूटेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि फॉर्म डी ग्रेजुएट्स जो है डॉक्टर्स हैं, तो वो मोस्टली मैंने जो देखा है फॉर्म डी ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो बिलिंग पर इस तरफ आ रहे होते हैं. अगर भी आपकी कंपनी में कोई फॉर्म डी के लोग एज अ मेडिकल बिलर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फॉर्म डी के मेडिकल बिलर भी कर रहे हैं और मेडिकल कोडर भी कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब सीख जाते हैं. इवन हमने पास्ट कुछ कुछ मंथ्स पहले हमने फॉर्म डी का पूरा बैच हायर किया था, जिनको हमने कोडिंग के लिए, और कोडिंग के जो सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कोडर थे उनके साथ बिठा के उनको ट्रेनिंग करके अब वो लोग कोडिंग कर रहे हैं हमारे. ओके सर, प्लीज बताएं कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें सर्टिफिकेट दिया करेंगे. कोर्स के बारे में पूछा जा रहा है. ओके, सो यस हानि, हम अपने कोर्स के एंड पे एक सर्टिफिकेट देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर वेरीफाइबल होता है. वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड SCCP एज वेल. सो यस, हम सर्टिफिकेट देते हैं. मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर इवन वर्किंग इन द टॉप नॉच कंपनीज ऑफ पाकिस्तान लाइक एज, और इस तरह की कंपनीज में भी काम कर रहे हैं. ओके, Anfal पूछ रहा है, I have completed my medical scrapping course, but I am having difficulty in finding a job. Anfal, keep working. I would say कि it's not a matter of days. आपको दिनों में नहीं करना पड़ता, आपको मेहनत करनी पड़ती है. कुछ लोगों को हफ्ते में मिल जाता है, कुछ को महीने में मिल जाता है. तो keep working on that to get there. Okay, thank you Aisha. Thank you for your suggestion. I would suggest 100% to get their course. Thank you very much. Which one is better paying, medical billing, medical coding और medical scrapping? ले भाई अजहर भाई, medical billing versus medical coding आप बताइए. देखिए, मेडिकल ये कॉमन सेंस है. मेडिकल कोडिंग अगर कोई है, वो फॉर्म डी का स्टूडेंट है या कोई मेडिकल डॉक्टर है, तो डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा वो है मेडिकल कोडिंग. अच्छा, उसमें अगर मेडिकल कोडिंग भी है, मगर मेडिकल बिलिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल जो चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास मेडिकल बिलिंग का डेप्थ नॉलेज है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, और आप किसी ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं एज अ मैनेजर ऑपरेशन, एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन, तो डेफिनेटली फिर आप मेडिकल कोडर से ज़्यादा अर्निंग कर रहे होंगे. और अगर बिलिंग एग्जेक्टिव लाइक एक यूज़र लेवल और एक कोडर, उस पर देखें तो फिर उधर कोडर की वेटेज ज़्यादा है. Okay, so एक क्वेश्चन है कि can a dentist turned housewife या mother enter in the field of scribing? Yes सारा, बिल्कुल आप स्क्राइबिंग में आ सकती हैं, और our team is always there to help you. आप उनको मैसेज करके इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. सर आप अपने सर्टिफिकेट के बारे में बताएं. हानि, मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप और द इंस्टाग्राम. इट्स ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट. हम अजहर भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने खास तौर पे अपना टाइम दिया, आपने खास तौर पे अपना कीमती वक्त दिया. एट द एंड ऑफ सेशन मैं आप सबके लिए एक कोड लिख कर भेज रहा हूँ
ये आपका वाउचर है। अगर आप में से कोई भी हमारे कोड में हमारे सेशन में किसी भी कोर्स में अप्लाई करता है तो उसको 20% ऑफ इस मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाने पे मिलेगा। मैं आपको एक कोड लिखकर भेज रहा हूँ। इट्स ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप जब कभी भी किसी कोर्स में एनरोल करेंगे आपको 20% ऑफ उसमें मिल जाएगा। तो अजहर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपकी इनसाइट्स जान के, मेडिकल बिलिंग कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम लोगों को इस कदर पे किया जा सकता है कि हम अपने फाइनेंसेस को डील कर सकें। और मैं मेरी तरफ से भी आखिरी पैगाम मेरे लोगों को से यही होगा कि डोंट बी एक्सप्लॉइट बाय समवन। अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाएं। जितना ज्यादा काम कर सकते हैं, जितना अच्छा स्किल सीख सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आए। हेल्थ केयर हसलर इज हियर टू वेलकम यू, टू हेल्प यू। जिस किधर कैपेसिटी में होगा तो हम इंशाल्लाह आपको इस पे हेल्प करेंगे। आई वुड कंक्लूड दिस सेशन। अगर सब ने ये सेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आई विल बी कंक्लूडिंग इट। हमारी इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी अगर कोई इसकी रिकॉर्डेड सेशन भी बाद में देखना चाहेगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच for being here, for being part of the conversation here, and I will be concluding it now.